Hello everyone, this is Dr. Ayush Sharma, rank 4132 in NEET PG 2021, and the video that you're about to see is taken from a series of videos that I live streamed a while back, which was titled 30 Days 19 Subjects for NEET PG 2021, which was sort of a revision program that I started. And only and only if you actually genuinely like the content and if you feel that you or anyone else, your juniors or seniors, can benefit from this content, okay, please do make sure to like and subscribe to my channel, like the video and share it. Most importantly, share it with your friends, share it with your juniors. My only goal is to make quality medical content available for everyone, and I have put the link down in the description to the main video that I streamed, so please do check it out. And thank you so much. Keep sharing, keep spreading love. So the first thing that we'll be discussing is this flow volume curve that we have in front of you. Okay. So what do we have here, right? Do you see this curve in front of you? Yes. तो ये curve जो आपको दिख रहा है ना, इसको मैं explain करने जा रहा हूँ. So what we have in the y-axis, okay, what we have in the y-axis is basically the flow. ठीक है, इसको हम बोलते हैं flow. अब y-axis में ऊपर की तरफ क्या है सर? ऊपर की तरफ is expiration. This is very important to understand. ऊपर की तरफ is expiration, नीचे की तरफ downwards is inspiration. डाउन इंस्पिरेशन, अप एक्सपिरेशन, इट इज ऑपोजिट. समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, इंस्पिरेशन इज डाउन, एक्सपिरेशन इज अप. ठीक है, ओके. एंड व्हाट इज ऑन द एक्स एक्सिस? वाई एक्सिस पे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, एंड एक्स एक्सिस के ऊपर यू हैव द वॉल्यूम. ओके. अब वॉल्यूम में एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट जीरो, दिस पॉइंट इज नॉट जीरो, दिस पॉइंट इज लेट्स से 6 liters और 5 liters लाइक आई हैव मेंशन्ड हियर. ठीक है, तो एक कर्व, दिस इज जस्ट अ बेसलाइन कर्व फॉर यू गाइस. ये कर्व इस तरफ भी एक्सटेंड होगा, इस तरफ भी एक्सटेंड होगा. समझ में आ रही है बात? एंड एज आई मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, माय लेफ्ट साइड, ठीक है, टुवर्ड्स दिस साइड, टुवर्ड्स द side where I've written TLC, the volume keeps on increasing, and towards the left the volume keeps on increasing, and towards my right, okay, the volume keeps on decreasing. ठीक है. Now just to make you understand this curve, try to assume that you are doing the flow volume curve analysis of a patient. ठीक है, and this is what we do in spirometry also. So try to understand, and with this we'll link the FEV1 upon FVC ratio. ठीक है, चलो. So a patient has come to you, and you have to start spirometry for that patient. Now you ask the patient to do a forceful expiration. That is where we'll start with. So at forceful expiration, what is the volume that we have in the lung? Residual volume. Okay, I hope all of you know the flow volume, not the flow volume loops, the part that I'm about to tell you now. ठीक है, तो this is the residual volume. ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद अपने पास आता है सर expiratory reserve volume. Then you have the tidal volume and the expiratory reserve volume. ठीक है, residual volume. Okay, this one is the expiratory reserve volume, this is the tidal volume, this is the inspiratory reserve volume. ठीक है, ये वॉल्यूम सबको पता है. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. तो मैंने पेशेंट को बोला फोर्स्ड एक्सपिरेशन. तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन पे कौन सी वॉल्यूम बचेगी सर? यस, दिस इज द वॉल्यूम दैट विल बी लेफ्ट एट फोर्स्ड एक्सपिरेशन, रेसिडुअल वॉल्यूम. तो रेसिडुअल वॉल्यूम पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्लॉटिंग द कर्व. वेयर इज इट? यस, यहाँ से आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्लॉटिंग द कर्व. Okay, now when I start plotting the curve, I'm going to ask the patient to inhale now. Whenever I'm asking the patient to inhale or exhale now, I'm asking the patient to do it forcefully. Okay, so patient starts to inhale and the volume of the lung is going to go up now. Okay, so once say it is going to reach to 6 liters or whatever it is. Okay, and ultimately when the patient is going to have a forceful inspiration, he's going to reach up to this point. ठीक है, तो इसको क्या बोलता हूं मैं? दिस इज द TLC, टोटल लंग कैपेसिटी. यस, तो TLC पे पहुंच जाएगा पेशेंट. समझ में आ रही है बात आपको? है ना? डू यू सी दिस? TLC पे पहुंच जाएगा आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द पेशेंट टू एक्सपायर. अब एक्सपिरेशन में क्या होगा? अगेन द पेशेंट इज गोइंग टू गिव अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. फोर्सफुल एक्सपिरेशन के अंदर द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी फास्ट एक्सपिरेशन, एफर्ट डिपेंडेंट पार्ट में इसको कह सकता हूँ. अगर तुम यू ट्राई दिस, यू ट्राई टू एक्सपायर वेरी फास्ट, you try to do a forceful expiration. Initially your expiration speed will be very high. After that, no matter how hard you try to push, your speed will not be dependent on your effort. Your speed will be dependent on your
रेस्पिरेटरी पाथवे कंप्रेशन, जितना कंप्रेशन आपका पाथवे अंदर से करेगा ना, यू कैन नॉट फोर्स दिस इज एफर्ट इंडिपेंडेंट पार्ट. द इनिशियल पार्ट इज एफर्ट डिपेंडेंट एंड द फाइनल पार्ट इज एफर्ट इंडिपेंडेंट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रही बात? दोबारा रिपीट करता हूँ. आई एम गोइंग टू आस्क द पेशेंट टू सिट डाउन हियर, okay, and then I'm going to ask the patient to do a forceful inspiration from residual volume to TLC. After reaching TLC, I will ask the patient to do expiration. Of course, the initial part is effort dependent, last part is effort independent. समझ में आ गई बात? ठीक है. That is what I've tried to explain here, and that is what I've written here also. Starting at, इसने starting at maximum inspiration किया, तो here he has started at TLC, ठीक है. And then I'm asking the patient to expire forcefully. Initial part is effort dependent, final part is effort independent. ठीक है? And this effort independent part is due to dynamic compression of airways. Let me just thicken my pen a little bit. Yes, dynamic compression of the airways. Understood? Okay. Now step 3, after reaching residual volume. Now this is again same thing. मतलब residual volume के बाद आप क्या कराओगे पेशेंट को? You'll ask the patient to do a forceful inspiration. तो ये inspiratory curve बन गया, expiratory curve बन गया. अब let's talk about the disorders and how this curve is going to change. ठीक है? Now, can you tell me what is the distance between the residual volume and the TLC called? मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस वॉल्यूम की. What is this volume? This volume is TLC. What is this volume? This is the vital capacity. The forced vital capacity, because we are asking the patient to do forceful things, forceful expiration, forceful inspiration. So this will be the FVC, forced vital capacity. Okay? चलो, so ये FVC हो गया, right? I hope I'm making sense to you. I'm going a little bit slowly because this is slightly conceptual to understand. ठीक है? Now let us talk about something called as mid expiratory flow rate. ठीक है? इससे मेरा क्या मतलब है? What do I mean by mid expiratory flow rate? This is the expiratory flow rate between 25 to 75% of expiration. मतलब अगर ये कब है, तो लेट्स से कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एक्सपिरेटरी रेट है, उसको हम बोलते हैं मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट. Understood? This is the mid expiratory flow rate, 25 to 75%. ठीक है? Now, just bear with me. Try to assume that there is a patient of what? There is a patient of COPD. ठीक है? तो आप सबको पता है COPD क्या होता है? What is COPD? COPD is a spectrum that ranges from chronic bronchitis to emphysema. सबको पता है बात? It includes this spectrum, and a mixture of this spectrum is what constitutes a chronic obstructive pulmonary disease. ठीक है? अब इसमें आप बात समझना. Let us consider a case of emphysema first. Even bronchitis for that matter. What happens in chronic bronchitis? Supposing this is the airway, respiratory airway. What happens? There is increased mucus secretion in your entire airway. Okay? And that is why there is obstruction. And everybody knows in COPD, the obstruction is more to expiration. The air is not able to come out. Even in chronic bronchitis, even in emphysema. Okay? Chronic bronchitis में क्यों नहीं आ पाती है बाहर? Because of this excess mucus. अंदर आ जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी. इसका भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है? ओके. नाउ एम्फाइसीमा में क्या होता है? एम्फाइसीमा में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बुल्ला फॉर्मेशन एंड एयर इज ट्रैप्ड. एयर ट्रैपिंग होती है. ठीक है? अब इसको माइंड में रखते हुए लेट अस मूव फॉरवर्ड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रेस्ट्रिक्टिव. तो मैंने आपको ये बोला कि पेशेंट एक्सपायर नहीं कर पा रहा है, पेशेंट इज नॉट एबल टू एक्सपायर. सो व्हाट विल हैपन टू हिज मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट? कम हो जाएगी ना. यस. सो दिस मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट इज हाईली sensitive for obstructive pulmonary disease. Understood? Highly sensitive for obstructive pulmonary disease. Okay? Chalo. Keeping that concept in mind, first we'll cover obstructive, then we'll move towards restrictive. ठीक है? Obstructive pulmonary disease के अंदर remember the fact that capacities and rates are more affected. Volumes इतनी ज़्यादा affect नहीं होती है, capacities और rates affect होती है. Okay? Capacity से मेरा क्या मतलब है? Vital capacity. Capacity क्या होती है? It is the difference between two volumes basically. ठीक है? तो वॉल्यूम्स आर नॉट मच अफेक्टेड बट कैपेसिटीज एंड रेट्स आर मोर अफेक्टेड. है ना? तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. अब इसके आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस FE1 अपॉन FVC रेशियो. ठीक है? पहले मैं आपको बताता हूँ FVC क्या होता है. ठीक है? व्हाट इज FVC? FVC इज वाइटल कैपेसिटी. तो व्हाट इज FVC? FVC इंक्लूड्स व्हाट? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब सबको पता है व्हाट हैपेंस इन COPD. टेल मी व्हाट हैपेंस इन COPD. बताओ. COPD के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीजेस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि देयर इज एयर ट्रैपिंग. समझ में आ गई बात? ठीक है? तो जब रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगी, ओके, व्हेन रेसिडुअल वॉल्यूम विल इंक्रीज, है ना, व्हाट विल हैपन टू द TLC? TLC का क्या होगा?
what will happen to TLC if your residual volume is going to increase? TLC will also increase, है ना? तो ये बातें आपको याद रखनी है सर. TLC बढ़ती है या नॉर्मल रहेगी, बहुत कम बढ़ेगी या नॉर्मल रहेगी. रेसिडुअल वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. दैट इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर. ठीक है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट FEV1, मुझे बताओ FEV1 का क्या होगा. मैंने आपको बताया था एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी फ्लो रेट सब कुछ कम होगा, तो FEV1 विल बी लो. बिकॉज ऑफ द फैक्ट FEV1 इज लो, what happens is FEV1 upon FBC decreases. ठीक है. इनफैक्ट अगर मैं वाइटल कैपेसिटी की बात करूं ना, तो वो भी कम हो जाता है ना. वाई? बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है. एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑल्सो फॉल्स इन COPD. ओके, दिस इज नॉट एस्टैब्लिश, सो लेट अस जस्ट लीव दिस. एक बस आप just for the conceptual thing, you can remember one thing for sure, that your residual volume, this is going to increase in COPD. ये बात याद रखनी है. दूसरी बात याद रखनी है, FEV1 upon FBC ratio is going to fall. कितना fall करेगा? We'll discuss this. ठीक है. Then we have DLCO. What is DLCO? DLCO is diffusion lung capacity. Diffusion lung capacity for carbon monoxide. ठीक है. इसके details we'll discuss. Now, this DLCO depends upon multiple factors like the membrane, ठीक है, लाइक योर परफ्यूजन, लाइक द गैस दैट इज बीइंग यूज्ड. यहाँ पर अपन CO कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं. ठीक है. सो रिमेंबर DLCO, दो चीजें याद रखना. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर दो चीजें होती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा. रिमेंबर दैट इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर योर क्या बोल रहा था मैं, DLCO. यस, DLCO इज नॉर्मल इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. इवन अगर मुझसे कोई पूछ रहा है COPD के अंदर क्या होता है DLCO इज नॉर्मल. ओके. But in emphysema, DLCO is decreased. Okay, DLCO is decreased in emphysema. In DLCO, it is affected. Remember, E for emphysema, E for affected. What is affected? DLCO is affected. Simple. चलो. Alright. अब आते हैं restrictive lung disease पे. Restrictive lung disease is nothing. It is simple to understand. Restrictive lung disease को मैं divide करूँगा pulmonary और parenchymal rather I would say. पैरेनकाइमल एंड एक्स्ट्रा पैरेनकाइमल. पैरेनकाइमल मतलब लंग के अंदर की प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, NSIP, UIP, व्हाटएवर इट इज फॉर दैट मैटर. ठीक है. दीज आर रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस इनसाइड द लंग. पैरेनकाइमल. एक्स्ट्रा पैरेनकाइमल, लेट्स से some patient has scoliosis, some patient has some kind of a pneumothorax for that matter, or anything that is going to restrict the expansion of the lung. That is restrictive lung disease, extra parenchymal. ठीक है. Remember that in parenchymal as well as extra parenchymal restrictive lung disease, volumes are more affected as compared to rates and capacities. तो यहाँ पे the difference is residual volume. Residual volume COPD में क्या होगी? Increase होगी. But in restrictive lung disease, residual volume will fall. Very very important. Okay, mostly it will fall. मैं interstitial की बात कर रहा हूँ. Extra parenchymal के अंदर it may rise. ठीक है. एक्स्ट्रा पैरेनकाइमल के अंदर मे राइज. आई विल शो यू द कर्व्स. ठीक है. उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा. रिमेंबर DLCO इज डिक्रीज्ड इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज. ओके, DLCO इज डिक्रीज्ड इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज डिक्रीज. बेसिकली रेसिडुअल वॉल्यूम कम हो रहा है, वाइटल कैपेसिटी कम हो रहा है, TLC भी कम हो रहा है. ठीक है. DLCO भी कम हो रहा है, बट रेट्स आर नॉर्मल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेट्स आर नॉर्मल. समझ में आ गई बात? ठीक है. आई होप आई मेड माई सेल्फ अबंडेंटली क्लियर. ओके, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन फॉर यू. ठीक है. ये क्या है? एक्सपिरेशन. ये क्या है? इंस्पिरेशन. ओके, और ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? दिस इज द वॉल्यूम. रिमेंबर, यहाँ से यहाँ मतलब 0 से लेकर के लेट्स से 7, 8 वॉट एवर यू वांट, यहाँ से यहाँ चालू होती है. ठीक है. तो अगर मैं इस कर्व की बात करूँ, दिस पर्पल कर्व इज नॉर्मल. ठीक है. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड. टेल मी व्हाट विल हैपन इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. आई टोल्ड यू दैट इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीजेस, है ना. मुझे बताओ रेसिडुअल वॉल्यूम कौन सी होती है? रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? पहले तो बताओ. रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होती है. ठीक है. तो ये जो कर्व है इसमें पहले लेट्स जस्ट लेबल दिस कर्व. ओके, सो दिस इज द रेसिडुअल वॉल्यूम. ओके, दिस इज द TLC. अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आपको बताया कि रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ हो जाएगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वॉज 2 तो आई थिंक 0.5 कर लेते हैं इसको. ठीक है. तो ये इंक्रीज होकर यहाँ पर क्या होगी? 1 या 2 हो गई. ठीक है. तो रेसिडुअल वॉल्यूम इज गोइंग टू, व्हाट विल हैपन टू रेसिडुअल वॉल्यूम? इट इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना. TLC के बारे में आपको क्या पता था? TLC या तो नॉर्मल होगी या इंक्रीज भी हो सकती है. सो TLC इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो दिस इज द कर्व हियर.
फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। इसके अलावा क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट इज दिस, यस दिस इज बुलस एयर ट्रैपिंग, ठीक है। तो एफर्ट डिपेंडेंट पार्ट इज ऑल राइट, बट जब एफर्ट लगाना बंद किया तब एयर ट्रैप होनी चालू हो गई। दैट इज वाई यू सी दिस काइंड ऑफ अ कर्व इन सीओपीडी। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सीओपीडी का कर्व हो गया, ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कर्व। नेक्स्ट कर्व इज दिस वन, व्हिच वन, दिस कर्व दैट आई हैव ड्रॉन फॉर यू, ओके। ये सीओपीडी का कर्व हो गया, नॉर्मल कर्व हमको हमको आता है। तो रेड कर्व एंड पर्पल कर्व आर डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्राउन कर्व, okay, which is about restrictive lung disease. What I tell you about restrictive lung disease? restrictive lung disease के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज, डिक्रीज मतलब इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड मूव कर रही है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सो दिस बिकम्स द कर्व ऑफ रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, बट विच वन, दिस इज फॉर पल्मोनरी और पैरेनकाइमल रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ठीक है। दिस इज पैरेनकाइमल रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ठीक है जी। नाउ द अदर कर्व, okay, is this one. This is nothing but your extra parenchymal restrictive lung disease, है ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बस जो कर्व है ना वो छोटा हो गया, कर्व विद इन अ कर्व कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट वन, द लास्ट फ्लो वॉल्यूम कर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, हाई टीएलसी, हाई रेसिडुअल वॉल्यूम, डिक्रीज्ड मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, यस, लेफ्ट शिफ्ट स्कूप्ड आउट कर्व, रिमेंबर लेफ्ट शिफ्ट स्कूप्ड आउट कर्व। रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज पैरेनकाइमल एक्स्ट्रा पैरेनकाइमल के हिसाब से द मेन कॉन्सेप्ट रेस्ट्रिक्टिव के अंदर वॉल्यूम्स जो है वो अफेक्ट होती हैं, डिक्रीज होती हैं, रेट्स और कैपेसिटीज अफेक्ट ज़्यादा नहीं होती है। राइट शिफ्ट कर्व फॉर पैरेनकाइमल एंड एक्स्ट्रा पैरेनकाइमल के अंदर कर्व विद इन अ कर्व, ठीक है। ओके, लूप्स फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द व्हाट यू डिस्कस्ड आल्सो, क्योंकि क्वेश्चन इस पे ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। छोटा सा एक आपको मैं बताता हूँ, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। दिस इज द लंग, लेट्स से, ठीक है। तो सिंपल हम बात करते हैं, ये थोरैसिक कैविटी हो गई ना, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा वोकल कॉर्ड, ठीक है। ये है वोकल कॉर्ड, ये थोरैसिक कैविटी। तो अगर मैं ऑब्स्ट्रक्शन की बात करूं, तो ऑब्स्ट्रक्शन को मैं बता सकता हूं कि वो या तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी एक्स्ट्रा थोरैसिक है या इंट्रा थोरैसिक है। अब एक सिंपल सी बात आप ध्यान रखना कि जो इंट्रा थोरैसिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, लंग के अंदर वाला, बिलो द वोकल कॉर्ड्स, इसके अंदर दोनों के अंदर एक्चुअली बॉल वॉल मैकेनिज्म होता है। बॉल वॉल मतलब या तो इंस्पिरेशन या तो एक्सपिरेशन, दोनों में से एक नॉर्मल होगा और एक अब नॉर्मल होगा, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ एट ऑल देयर इज एन इंट्रा पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन, लेट्स से दिस, तो इसके अंदर क्या होता है ना, जैसे आपने सीओपीडी में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर एक्सपिरेशन इज अफेक्टेड इन इंट्रा पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब जब बंदा सांस ले रहा है तो सांस अंदर आ रही है, लेकिन बाहर आते टाइम ये बॉल वॉल इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। दिस इज अबाउट इंट्रा पल्मोनरी। व्हाट इज अफेक्टेड, एक्सपिरेशन इज अफेक्टेड। अब इसको इसके ऊपर आ जाते हैं, किसके ऊपर, अबव द वोकल कॉर्ड्स पे। अबव द वोकल कॉर्ड्स के अंदर व्हाट हैपेंस इज अगेन सेम बॉल वॉल मैकेनिज्म, बट हियर इंस्पिरेशन इज नॉर्मल, बट एक्सपिरेशन के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन आता है। सॉरी, इंस्पिरेशन, या सॉरी, एक्सपिरेशन इज नॉर्मल, रियली सॉरी अबाउट दिस, एक्सपिरेशन इज नॉर्मल बट इंस्पिरेशन पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ओके राइट। एंड द थर्ड वन इज फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये फिक्स्ड है सर, इसके अंदर बॉल वॉल मैकेनिज्म नहीं है, ये ना तो एक्सपिरेशन होने देगा ना इंस्पिरेशन होने देगा, बोथ ऑफ देम विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। विद दिस इन माइंड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन सब्सिक्वेंटली, ओके राइट। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन because I think respi and cardio are my strong suits, even neuro is, but I was not able to cover it properly only because of the fact that time is lacking and I cannot cover entire medicine in such a small amount of time, ठीक है। So let's come to this. See, I told you extra pulmonary, extra thoracic and intrathoracic। मैंने आपको बताया intrathoracic के अंदर ball wall mechanism, what is obstructed, expiration is obstructed। तो expiration का curve दिख रहा है आपको, ऐसा हो गया, ये एक्सपिरेशन का कर्व है ना, सो इट हैज बिकम लाइक दिस। एंड इन इंट्राथोरैसिक, मतलब इंट्राथोरैसिक के अंदर ये है, एक्स्ट्राथोरैसिक के अंदर योर इंस्पिरेशन इज अफेक्टेड, देखो इंस्पिरेशन इज अफेक्टेड, एंड इन फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बोथ आर अफेक्टेड। दिस इज नोन एज योर बॉक्स शेप्ड कर्व, अंडरस्टूड। एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज subglottic stenosis, and this subglottic stenosis typically occurs in a post intubation patient, and this is actually the reason that after intubation, this is something that is practical, ठीक है। ये मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कोविड के टाइम पे कि आफ्टर अ पेशेंट हैज बीन इंट्यूबेटेड फॉर कोविड, आफ्टर ही हैज रिकवर्ड, यू स्टिल पुट हिम ऑन समथिंग कॉल्ड एज नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि कई बार क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क होता है, ये तो आपको देखना ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट,
पोस्ट इंट्यूबेशन द पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है वो कम होता है, तो टू असिस्ट इट यू पुट द पेशेंट ऑन एनआईवी, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑलवेज 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 चेक फॉर सबग्लॉटिक स्टेनोसिस, वेरी कॉमन इन पोस्ट इंट्यूबेशन पेशेंट्स. Okay, fixed upper airway obstruction is box shaped curve. Okay, so that completes the flow volume loops. Now let me discuss with you the next important topic of classification of pulmonary diseases based on A minus A gradient. ठीक है.